You are trying to cash in on the chaos in the society, and my perception is that you have no idea as to what comes next. Human beings are designed for conflict. I think you forgot the actual question that I asked. I know आपके पास बहुत पैसे हैं, you travel the world, you make money. गरीब गुरबा का कौन सोचेगा? नाअहल लोग जब खास जगहों पे आ जाएं तो आम आवाम की छतें टपकना शुरू कर देती. It is that simple. You didn't understand it, I know. Don't worry. I am not asking for it. I am actually preparing for it. And cashing on it as well. Argument is that you don't know even the basic issues of the Islamic Jamhuriyah of Pakistan. That is my core. That's not your argument, that's your assumption. मैंने आपसे कहा है these इन्फ्लेशन कितनी है हमारी साइड में सोसाइटी में? मैं सिर्फ एक ह्यूमन लेवल पे कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ. You lack empathy is all that I'm trying to say. or maybe you lack IQ. This podcast should be in a box somewhere. Trust me, do not release this podcast. मेरी आवाज हर जगह औरतों तक पहुंच रही है. औरतें are being empowered through my concepts by telling them that they are jahil. आपने एक टाइटल पढ़ ली अपने गूगल के सर्च के ऊपर और आपने उसके बाद फैसला किया ना, इसलिए ये जाहिल होती है. बाय द वे आप एक जाहिल आदमी हैं, आपको पता है. Hello, assalamu alaikum everyone. मैं हूँ Ismail Qasim and I welcome you all to a very special episode here at the current podcast. Today we are joined by Mr. Sahil Adeem. Sahil भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाइए, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक. Tell me, I'll get right down to it. Are you using instability as an instrument? The general perception is that you are trying to cash in on the chaos in the society, and my perception is that you have no idea as to what comes next. Is that the case? No, that's not the case. Actually, that's very far from the case. Chaos is what is going on right now. Morally speaking, politically speaking, you're trying. अभी इस वक्त जो हम कर रहे हैं, that's management of chaos. You see any kind of stratum, you'll see a disarray, you'll see chaos. And human beings are designed for conflict. That's my case. And that's just not my case. I have data backing it up. We need to make sure कि जो 3 layers हैं human society की, उसमें से जो सबसे ऊपर वाली layer है, that comes into order. If that comes into order, नीचे सारा का सारा जो herd है वो वैसे ही follow करता होता है. आम बंदा किसी दीन पे नहीं होता, आम बंदा खवास के दीन पे होता है. That system has to be well bounded. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी हैरान रह जाएंगे उस दिन जिस दिन वो देखेंगे कि फरिश्ते जंजीरों में जकड़ जकड़ के इंसानों को, ग्रोहों को जन्नत में फेंक रहे हैं. साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, what chains are these which lead regular people into heaven? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो सिस्टम है, वो निज़ाम है जो इंसान चाहते तो थे, नफ्स आमादा करता था, वो हर वक्त गुनाह की तरफ, नफ्स परवरी की तरफ माइल हो सकते थे, मगर सिस्टम इतना टाइटली बाउंड था, they couldn't do it. So आम आवाम, सूरह इनाम के थ्रू भी आम आवाम, जब भी आप ग्रोह को देखेंगे उसमें ज़्यादातर लोग इंटेलेक्चुअल्स नहीं मिलेंगे. They will not be pondering over morality and self-accountability. They will be chasing their whims. They will be justifying their wish lists, no matter how they get to fulfill those lists. So once you have that kind of power, imagine the power of 8 billion people trying to do whatever they can and get whatever they want. Imagine, एक सेकंड के लिए सोचें कि 8 अरब बंदा अपनी अपनी करे, तो फिर क्या होगा? That's way bigger than any kind of nuclear deterrent that you can fathom. That's bigger than any kind of war that has ever happened. That's more devastating, more chaotic than anything that's happening in the middle of any star going through supernova. This is the real definition of chaos. I'm sorry, I'm cutting you off. I did not ask you the definition of chaos. I think you forgot the actual question that I asked, because this is not the answer that I was expecting. I asked you, I'll repeat, what comes next? Do you have any idea about that? No, I did not forget your question. I forgot the fact that you have a way of forgetting questions, forgetting whatever I'm giving you as a precursor. So I'm going to give you a precursor. Chaos is in your design. I am not asking for it. I am actually preparing for it. And cashing on it as well? No? And casting? Cashing on it as well? Why would I cash? How? Nobody can cash chaos. So even, have you ever come to think for a second that the instability in the society is an actual problem? I mean, and living in your big palaces और बड़े बड़े महलात से अगर नीचे उतरें
तो आम आवाम के मसाइल जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, एंड आपकी गुफ्तगू जो है वो इतनी सुपरफिशियल हो जाती है कि वो भूल जाती है कि लोगों के डे टू डे अफेयर्स के अंदर इश्यूज़ हैं क्या. आई मीन यू टर्म और कॉल योरसेल्फ अ लीडर, बट आई पर्सनली थिंक दैट यू फॉरगेट दैट लोगों के मसाइल और हैं शायद. नो, Again, I tell you this again. आम आवाम कभी भी अपना स्टेटस को चेंज नहीं करती. दैट्स बिल्ट इन टू आवर ह्यूमन मेक. आम आवाम को और इस क्वेश्चन को डिटैच करें. ये जो आंसर मैं दे रहा हूँ ये जवाब खवास के लिए है. माई मूवमेंट इज फॉर द पीपल हु हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स इनफ टू थिंक. व्हाट इज द आउटकम ऑफ द मूवमेंट? The outcome of the movement is the original world order. Inshallah. To get there, is there going to be anarchy, revolution? How is it going to come into place? The steps towards this? Well, ideally, if enough number of people come into play, enough number of people, लाखों करोड़ अरबों में नहीं याद रखिएगा. People who have the right IQ coming together, pulling enough resources, and generating enough influence जिससे क्रेडिबिलिटी मेंटेन की जा सकती हो. बाकी सब तो फॉलो करते हैं. आप ये बताएं, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अ केस स्टडी जिस आम आवाम की आप बात कर रहे हैं, ये विक्टोरियन लॉ के अंडर क्यों है? Again, Salbi, before we head into that domain or direction जहाँ पे आप usually conversations को ले जाते हैं. I'm giving an analogy. I'm not driving the conversation. I'm asking you to open your eyes and see कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान विक्टोरियन लॉ के अंडर मेंटेन किया जा रहा है ना. आम आवाम की औकात ही नहीं है कि वो लॉ चेंज कर सके. My argument is that you don't know even the basic issues of the Islamic Jamhuriyah of Pakistan. That is my core. That's not your argument. That's your assumption. That's not an argument कि मुझे अगर मैं आपसे कहूँगा I can back it up. I can make it into an argument. Well, then construct an argument and then we'll talk about this. क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ biology Below के poverty line ratio कितनी है? Let's develop it into an argument. Poverty? Really? That's your main argument? नहीं, that's just the first tip of the iceberg. Tip of the अभी तो चलेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है. ये बताएं इस्लाम. नहीं, I'm not going to tell you anything. I'm going to be asking questions. Okay, let me tell you the answer. जितनी भी बड़ी मूवमेंट्स हिस्ट्री ऑफ आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में आई है ना आज तक, Not the answer. आपने सुने बगैर कैसे फैसला कर लिया? मैंने नंबर तो बता दें, एग्जैक्ट फिगर ना बताएं, बट एटलीस्ट मतलब यू नो. मैं आपको 100% का नंबर बताने लगा और से सुनिएगा. आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों से आज तक जितनी भी मूवमेंट्स इसकी ओवरहॉलिंग द होल सिस्टम, चाहे वो लाखों के हों, करोड़ों के हों या फिर कई करोड़ों के हों, सब के सब अंडर द पॉवर्टी लाइन वालों ने किए हैं. फ्रॉम यूरोप टू मिडल ईस्ट टू गोइंग बैक इनटू ग्रीक, रोमन्स, मुस्लिम्स. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा क्या जो महल्लात के और बादशाहों के और शहजादों के साथ मूवमेंट की थी? नहीं, गुरबा ने की थी ना मूवमेंट. सो यू डोंट. कितने गुरबा हैं हमारे सोसाइटी के अंदर? डू यू नो? वैसे पूछ रहा हूँ कितने गुरबा है? वेयर डू यू डिफाइन द थ्रेशोल्ड ऑफ गुरबा? मैं किस गुरबा को गुरबा कह रहा हूँ? जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं वो बता दें. यू टेलिंग मी कि बिलो पॉवर्टी लाइन पे हो तो उसमें मॉरल लॉ नहीं अप्लाई किया जा सकता? मैं मॉरल लॉ की तो बात कर ही नहीं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट योर आर्गुमेंट इज. नहीं, दैट्स नॉट माय आर्गुमेंट. आप ये कह रहे हैं सर रोटी नहीं दोगे तो दीन नहीं आएगा. ऐसा तो मैंने नहीं कहा. क्या मतलब है? Put words into my mouth. Oh, no, I can do that myself. I'm translating your words. I'm not putting your. I'm actually putting your words on the I'll be table. very respectfully मैं बताता हूँ. The leaders that we have, उनका इशू ये है कि वो इतने अपने बबल से बाहर नहीं आते. मेरा जो कोर You think this is my problem? दैट इज योर प्रॉब्लम ना, कि आप इतनी बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू, फिलोसॉफिकल और मैटा आप गुफ्तगू करेंगे. आप मैंने हिस्टोरिकल गुफ्तगू की है, फिलोसॉफी बताई नहीं मैंने. मैं कह रहा हूँ कि लोगों के पास सिर्फ रोटी नहीं है. डू यू नो दैट? आपको पता है कि रोटी नहीं है लोगों के पास, एंड यू आर टेलिंग मी कि जो कुछ आप करते हैं. अगेन जब ये जुमला बोला आपने कहा था डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, मैंने आपसे कहा रोटी ना हो तो उनको गुनाह की इजाजत दी जाए? बिल्कुल भी नहीं सर. मैं पूछ रहा हूँ जिनके पास रोटी नहीं है उनके लिए कोई एम्पैथी है? नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है उनके बारे में सर. अच्छा, ये हो गया. नहीं, अभी तो आर्गुमेंट तो नहीं है. अगेन जस्ट द बिगिनिंग. आपने क्यों सोचा कि मुझे पता नहीं है उनके बारे में? क्या आप जवाब ही नहीं दे रहे? मैंने आपसे कहा है इन्फ्लेशन कितनी है हमारी साइड में सोसाइटी में? अच्छा, इन्फ्लेशन से क्या होता है लोगों की जिंदगी के ऊपर असर? आई नो आपके पास बहुत पैसे हैं, यू ट्रैवल द वर्ल्ड, यू मेक मनी. गरीब गुरबा का कौन सोचेगा? What are you trying to actually प्रूव समथिंग के गुरबा? मैंने वही कहा, आप प्रूव ये कर रहे हैं कि गुरबा हो जब तक सब के सब लोगों के पेट नहीं भरे होंगे आप मोरालिटी की बात ना करें. दैट्स योर चीफ आर्गुमेंट. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. मैंने तो आर्गुमेंट ये प्रेजेंट किया ही नहीं है. मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा है कि गुरबा का मूवमेंट से
पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। गुरबा ने ही मूवमेंट्स की हैं जितनी भी की हैं। आप कह रहे हैं सर पहले कौन, मैं उन गुरबा के अंदर आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ हमारे, हम गरीब गुरबा की बस्ती में, कच्ची बस्तियों में तो हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अपने मोहल्लात से हमारे पास भी तो है ना, देखें तो सही। मैं सिर्फ एक ह्यूमन लेवल पे कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ। इट्स बिन अ वाइल, I mean, I've always wanted to have this conversation with you. I mean, I wanted to sit right in front of you and ask you, Salvi, हमारी छतें लीक होती हैं। Draw the archetype. No, your words don't mean anything हमारी right now. छतें लीक होती हैं। सालवी, मेरे पास बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं है। सालवी, मुझे प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? मैं पैम्पर चेंज करना है, क्या करूँ? सालवी, रोटी नहीं है। मेरा हमसाया जो है वहाँ पे रोने की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ रोटी नहीं है। सालवी, पेट्रोल 400 रुपये लीटर है। आई नो आपके लिए तो इट मीन्स नथिंग, क्योंकि आप लाइनों में नहीं लगते। सालवी, हम लोग लगते हैं। हमारा प्रॉब्लम समझेंगे प्लीज़, हमें लीड करने से पहले। नहीं हो गया, मुझे बताना जब आप अगेन जस्ट द बिगिनिंग। बताना ना, पूरा कर लो ना एक दफा, मैं आंसर देता हूँ ना। भाई हमारा दर्द कौन समझेगा? I mean, you call yourself a leader of the masses of this country, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। No, you call आपको myself मेरे a leader बेसिक of- प्रॉब्लम्स का ही नहीं पता सर। अच्छा, हाँ, मुझे लीड करने आगे। 3 दफा बोलने से आपकी बात दुरुस्त नहीं हो जाएगी। वो आप प्रूव करेंगे मुझे अब नहीं आपको पता पता। है, मैंने 3 आपके सामने चीज़ें रखी हैं, आपको तीनों का आपके पास जवाब नहीं था। आपने मुझे जवाब तो देने दें। मैं अगले 10 मिनट खामोश बैठ जाता हूँ। आपने मुझे इन 3 चीज़ों से अपना केस पहली बैठ बात तो करना ये कि you don't have it, but have what it takes to 10 मिनट खामोश रहें। मुझे इसलिए क्योंकि मैं गलत के ऊपर खामोश रह नहीं सकता। मैं नहीं रह सकता। दैट इज हाउ आई एम बिल्ट। इस्माइल, आपकी छत लीक हो रही है, इसका इलाज खवास का दिमाग दुरुस्त करना है। Oh my छत को God. पेंट करना नहीं है। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है। अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। साहिल भी, मेरा बच्चा रात को मर जाएगा अच्छा, भूखा, पैम्पर नहीं है उसके पास पहनने के लिए, गंद कर रहा है घर के अंदर, दूध पिलाने के लिए है नहीं। अब मैं क्या करूं बताएं मुझे। आपको मैंने कहा इकट्ठे होना मजबूर। आप एक इकट्ठे होके कॉमन सुसाइड कर लें, इकट्ठे हो गया। अब मैंने आपसे कहा ना, आप में है नहीं सुनने की क्या ताकत। अभी मेरी पॉइंट पे आए ना, फिर सुनूंगा। मेरे गरीब की बात करें। अच्छा, मैं प्रिविलेज लोगों से आई एम एलर्जिक टू देम। आई नो कि मैं भी उन्हीं को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट आई वांट टू हैव सम एम्पैथी। मैं रोजे आखिर जवाब तो मैंने सोचा तो था इनका। Ismail, I don't want to go to I don't want to wear a therapy lens right now, but you're reeking with resentment. Resentment? Yeah, you're reeking with resentment. It's okay. Having empathy for the poor is resentment. Okay, I'll take your definition. That's You're a justification of psychologist. your I know you do these things, Yeah, but that's justification of your resentment. It's okay. Don't. justification of resentment. Yeah. Empathy is having resentment No, for you're calling another. it empathy. Okay, listen. I'm going to tell you. Inflation कितनी है आजकल हमारे साइड में? ये बताएं इन्फ्लेशन का। मैंने नहीं बताना कुछ। अच्छा, I'm आपको not the पता ही नहीं है। privileged one. I'm not Inflation का leading the किसने masses सिखाया into आपको? chaos and anarchy. ये उस्मान बाजवा ने जिसकी छत लीक हो रही, उसने सिखाया इन्फ्लेशन? किसने सिखाया आपको इन्फ्लेशन? बताएं तो सही, इन्फ्लेशन से होता क्या सीख है? लो ना, बताता हूँ ना इन्फ्लेशन क्यों होती है। क्यों होती है बताएं? अब पैसा डिवैल्यू क्यों होता है? बताएं। आपने मुझे बताना है और सारों को लिंक मेरे गरीब गुरबा से जरूर करना है। अच्छा, आप ह्यूमनाइज गौर से करनी है सुनना, कॉन्वर्सेशन। गौर से सुनना। आप ह्यूमनाइज जरूर करनी है। 5 मिनट चुप रहना, फिर मैं खामोश अगर रहूंगा। आपने मैं बीच में काउंटर अगर बोला- आए मेरे पास फिर 5 मिनट बाद देना। और अगर छत लीक होने से तमीज तो नहीं लीक होती ना। नहीं, और अगर उसके दरमियान में आप फिर अगेन मेटा गुफ्तगू में चले गए, फिलोसॉफिकल मैं आपको बताने लगा, अब हम इन्फ्लेशन के ऊपर ही बात करेंगे। नहीं, इन्फ्लेशन अगेन जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। आ रहा हूँ ना, बाकी की चीजों पे 1 by 1 चलेंगे ना। हम पे आगे जाते जाएंगे साहिल भाई। जिन बच्चों को आपने लीड करवाना है उनके पास नौकरियां नहीं है। इस्माइल, अच्छा आपने ये मोड रखा है, मुझे बोलने नहीं देना। नहीं, मैं खामोश रह के सुनूंगा। आई एम जस्ट हर्ट, इज दैट इज ऑल। आई एम जस्ट हर्ट। No, you're hurting right now. The people that you're trying to represent, you're not representing them properly. Okay. कोशिश ही कर सकता हूँ, उनकी दर्द कौन समझेगा, और हम तो नहीं समझ अकल कर सकते हो, कोशिश बाद में करना। पहले अकल कर लें, फिर कोशिश कीजिए। सही साहिल भाई। ये बताएं, ये ना बताएं, आप ना बताएं प्लीज़, मेरी गलती है, मैंने आपसे पूछ लिया। सबसे पहले मैं कैमरे में देख के बताता हूँ। इस्लामिक बैंकिंग, सूद बैंकिंग, बैंकारी, रुपया, बुलियंस, गोल्ड बैकअप, ऑल ऑफ दिस डज नॉट मैटर। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मेरा आपसे एक मेरी इल्तिजा है तमाम मुफ्तियान से कि अगर आप सूद को हराम कर ही रहे थे, इतना आपको पता था कि सूद हराम है, तो थोड़ी सी इनसाइट ले लेते और पेट्रो डॉलर भी हराम कर देते। पेट्रो डॉलर हराम करने से, जो कि मैं आपको इल्लत बता रहा हूँ कि वो क्यों हराम है, स्पेशली जंग के दिनों में तो बिल्कुल भी हराम होनी चाहिए थी, 100% हराम होनी चाहिए थी। सबसे पहला फतवा और मूवमेंट आनी चाहिए थी पेट्रो डॉलर हराम होने की, कि ये क्या असूल है कि हर तेल का बैरल डॉलर में ही ख़रीदा जाए। ये क्या असूल है? इसको आपको पता नहीं था किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होता है, किसको नुकसान होता है, कहाँ पे नुकसान होता है इस बात का। दुनिया की सबसे बड़ी साजिश 50 साल की पेट्रो डॉलर है। अगर पेट्रो डॉलर के ऊपर प्रॉपर मूवमेंट की जाए, जिस तरह इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया सैंक्शन के बावजूद, ईरान से लेना शुरू कर दिया सैंक्शन के बावजूद, हम भी ले सकते थे अगर ये मूवमेंट जी शऊर लोग
इस्लाम के नाम पे कर देते होते। इस्लाम में ही हराम है, डेमोक्रेसी में तो कुछ हराम हलाल नहीं होता, वो तो जो लोगों की राय होती है वो हराम हलाल होता है। सो अगर ये मामला वहाँ पे जड़ से काट दिया जाता तो वी वुड हैव प्रॉस्पर्ड इन द सेकंड स्टेप, नॉट इवन इन द थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप। हम फर्स्ट हैंड बेनिफिशरी होने थे, फर्स्ट हैंड बेनिफिशरी, और हम नहीं, खाली आधी दुनिया। मगर मैं इस वक्त अपनी बाजवा साहब की छत लीक हो रही है, जंजुआ साहब की हो रही है, उनके पैम्पर नहीं मिल रहे उनके बच्चों को, ये सारा का सारा इफेक्ट क्यों आ रहा है? रुपया डिवैल्यू हुआ हुआ और डॉलर वैल्यू पकड़ी जा रहा है। हमें उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर करके तेल खरीदना पड़ता है, हमें उनको डॉलर दे देके अपने पास डॉलर इकट्ठे करके तेल खरीदना पड़ता है। यू थिंक दिस इज अ जोक? मुसलमानों का तेल गैर मुस्लिम के फ़ायदे के लिए खरीद रहे हैं हम। पाकिस्तान और सऊदी अरब तेल खरीद बेच रहे हैं, इसका अमेरिका को क्यों फ़ायदा हो रहा है? इट इज़ सच अ सिंपल क्वेश्चन टू आस्क। थर्ड पार्टी क्यों बेनिफिट ले रही है इससे? दो मुसलमान आपस में तिजारत करेंगे, फ़ायदा सारा उस बंदे को होगा जिस बंदे ने हमले कर करके अपनी एम्पीरियल ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे हैं। ये आपका इन्फ्लेशन का इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज। इस वक्त मैं ईरान जंग चल रही है, सबको मैं तरबियत भी करना चाह रहा हूँ। वंस यू नो हाउ एंड वाई इन्फ्लेशन comes into play, then you can talk about sir poverty, inflation. मैं आपको चीफ कॉज दे दिए। अब इतना बड़ा मौका मिल गया था हमें, अगर इतनी आर्बिट्रेशन करानी थी तो नेगोशिएशन पावर ईरान को भी हम थोड़े दांत दे रहे थे, उनको तो दांत, उनका जबड़ा हाजिर था, दांत इतने लगाने लगा दो, हम ईरान से भी तेल ले लेते। आई एम नॉट डन येट, okay? I'm trying to train you, get trained, listen and learn. Okay? No, don't speak, just learn. बहुत दूर चले गए? नहीं, दूर नहीं गया हूँ मैं। आपके जंजुआ साहब की छत सील कर रहा हूँ इस वक्त, पानी ने टपके उसको पैम्पर पहना रहा हूँ उसके बच्चों को, ठीक है? उसके मुंह में, उसके बच्चों के मुंह में रोटी जा रही है। मैंने इतनी देर खामोशी इख्तियार की, इतनी देर नहीं, बहुत दूर चले गए। ये दूर है आप, इसका आपके जंजुआ साहब की छत ठीक हो रही है, मसला आपका दर्द किधर है? बहुत दूर। वो आसिया के साथ दर्द किधर है? आमना के साथ इसके बच्चे सब भूखे हैं। अच्छा, फेक दर्द है ये, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ तो आसे पासे हो गए। नॉट द सॉल्यूशन। रियली ये सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं पता। आपको पता भी है कि मैं एग्जांपल देता हूँ, सऊदी अरब से तेल खरीदते वक्त जंजुआ साहब की छत पे क्या इफेक्ट आता है? आपको आंसर नहीं आता इसका? भाई मैं आपको ये नहीं पता कि हमारी इंपोर्ट जितनी ज्यादा बढ़ती है उससे जंजुआ साहब की छत पे उतने सारे सुराख होते हैं? आपको पता है डायरेक्ट सुराख करते हैं हम अपने गुरबा की छतों के अंदर, डायरेक्ट सुराख करते हैं जितना हम अपना ट्रेड डेफिसिट कर रहे होते हैं। आपको इतना नहीं पता? ये फर्स्ट हैंड डैमेज है, बीच में कोई थर्ड पार्टी भी नहीं, सेकंड पार्टी भी नहीं है। सो इफ यू डोंट नो हाउ द सिस्टम वर्क्स देन यू कैन क्राई ऑल ऑफ दीस क्रोकोडाइल टीयर्स। उससे सिर्फ की छत और टपकेगी, उसमें आपके आंसू भी टपक रहे होंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड। भाई मैंने कहा था जब तक पढ़ा लिखा बंदा जिसको पता हो, सुन लें आप बात कर लीजिएगा, जब तक आपको ये नहीं पता कि सर वॉशिंग मशीन चलती कैसे, तब तक कपड़े गंदे ही बाहर आएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम कहाँ रैंक करते हैं साहिल भाई? मिनट के ऊपर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पाकिस्तान कहाँ रैंक करता है? आप मैं 120 121 है इस वक्त, ठीक है? ओह माय गॉड, सी पकड़े गए ना? नहीं, मैं नहीं पकड़ा गया। अच्छा कर, अभी गूगल पकड़े गए ना? आपको पता है 120 121 से बढ़ चढ़ कर कहाँ 150 क्रॉस कर गया? 121 है भाई, 2025 की बात बता रहा हूँ। 2026 में इतना फर्क पड़ गया हमें। देखिए आप गूगल करें, वो फोन पड़ा हुआ है। आप सुने, वो गलत बंदा जब रिप्रेजेंट करेगा पूरी कौम तबाह हो जाएगी। आप ये बताएं, मैं आपको, अच्छा आप एक काम कीजिएगा साहिल, मैंने भी कैमरे में देख के एक अपना वो गुफ्तगू की थी, मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि HTI जो मैंने फिगर कोट की है वो चेक कर लीजिए। अच्छा ये बताएं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 पैरामीटर्स इकोनॉमिक्स को अलग कर दें, इकोनॉमिक्स अलग कर दें, उसके अलावा कोई से 2 पैरामीटर बता दें। मैंने सवाल भी मुझे कुछ पता ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, सीख लेना बेटा। मैं सिर्फ आपसे भी पूछ रहा हूं, अभी मुझे बताएं। मैं एजुकेशन क्राइसिस के ऊपर सिखा रहा हूं तो सीख लो। एजुकेशन बच्चियों के ऊपर अगर मैं आया तो फिर तो वो बड़ी सेंसिटिव से डिस्कशन हो जाएगी आपको लेके, बिकॉज आपने बच्चियों को वैसे ही फेंक दिया है मक्खी की तरह। ये तो जाहिल है, ये तो होगा। You did that. I'm just asking for once, हम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। I'm asking you कि हम एम्पैथी एक बार ले आए। Like you are leading masses into chaos is my point of view. रेवोल्यूशन, आखिरी 3 रेवोल्यूशंस बता दें मुझे, कहाँ हैं? नहीं पता होगा ऑब्वियसली। 3 रेवोल्यूशन, साउथ एशियन रेवोल्यूशंस को जरा डिस्कस कर लेते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, सबसे पहले ईरान। क्या चाहते हो, क्या करना है उसका? तबाही आई उनके बाद। मैं पूछ रहा हूँ कि इज दैट वेयर यू वांट कि पाकिस्तान जाए? मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या है? मुसलमान कॉम्पिटेंस में आए, मुसलमानों का IQ बढ़े, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो, हमारी इन्वेंशंस, हमारे थ्रू इन्वेंशंस हो। फिजिक्स हमारे पास आ गई एक दफ़ा, लैब्स हमारे पास खुल गई, आर्मामेंट्स हमारे पास आ गई। ये आपने प्रिविलेज लोगों की बातें की, गरीब का क्या होगा फिर दोबारा से? अच्छा ये बताओ, आपको पता है कि आइंस्टाइन की नेट इनकम कितनी थी इस साल की? जिस साल वो मरा है। आपने कहा ये बिलियनियर हैं जो चीज़ें ईजाद करते हैं। साइंसदान कब से अमीर हो गए भाई? क्या बताओ ना, सबसे ज्यादा पैसा। अच्छा मुझे ना कहीं और ना जाओ। साइंसदान अमीर नहीं होते बेटा, लैब में बैठे होते हैं, रोजगार में मिनिमम वेज के ऊपर भी लोगों ने चीजें ईजाद की हैं। उनका काम लैब तक रसाई। आप ये कॉन्वर्सेशन आपकी दे देगी ना? आई डोंट थिंक सो। व्हाट दे देगी लैब तक रसाई? मेरी कॉन्वर्सेशन नहीं, मेरा प्लान भाई।
conversation, not a plan. Plan तो ना आपने प्लान पूछा, मैंने प्लान, आपने कहा वो बांग्लादेश और नेपाल चाहते हैं, आप ईरान चाहते हैं। भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं क्या चाहता रेवोल्यूशन नहीं चाहिए हूँ, मैं क्या रेवोल्यूशन का जो लफ्ज आप यूज कर रहे हैं उसमें मार धाड़ लड़ाई कुटाई बंदे यानी मार। आपने लड़ाई कुटाई वाला कोई चक्कर नहीं है, वो तो खत्म करें ना। बिकॉज पीपल दैट फॉलो यू अज्यूम कि हमने निकलना है और हमने जहाद करना है अपने लोगों के खिलाफ। नहीं, वो आप अस्यूम कर रहे हैं। मेरे जो बंदे मुझे फॉलो कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो मुझे फॉलो नहीं, वो अल्लाह के रसूल को फॉलो कर रहे हैं, वही जो इकट्ठे हुए हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। आप असल में मेरी वीडियोज़ नहीं देख रहे, या रील्स देखना बंद करें, तहकीक में आएँ, वरना छत पकती रहेगी अल्लाह की कसम। पूरी वीडियो देखा करें। क्लियर वो ये ट्रेट जो होता है ना नार्सिसिस्टिक, वो मुझे फिर से नजर आया कि कितना ज़्यादा मतलब मैं है, मतलब वो आप मेरी वीडियोस पूरी देखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। यानी इतनी मैं होना इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट नाइस। इस्लाम भी इसके अगेंस्ट है। भी आपने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम follow तक तो करें। आई ना बेटा, इस्लाम में भी मैं है, इस्लाम तक तो अब आए ही ना। मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ उस पर रुको और समझो, सीखो। वीडियो 4 घंटे की देखने का मतलब मेरी वीडियो नहीं था। somebody who's trying to learn, सुनिए, you're mocking him by saying कि हंसते हुए कि इस्लाम तक तो आओ ही ना बेटा। That's not nice. इस्लाम में ना उन लोगों ने रेवोल्यूशन लाई, इनकी छतें टपकती थी बेटा, इसलिए कह रहा हूँ। मैंने किसके जवाब में कहा, मैंने कहा इस्लाम में मैं नहीं है, मैंने कहा इस्लाम में मैं नहीं है, एंड यू लाफ्ड इट आउट। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने उस पर नहीं आपसे कहा, मैंने आपसे कहा इस्लाम तक तो आया। मैंने आपसे ये नहीं कहा मेरी वीडियो 4 घंटे की नहीं, मैंने कहा कोई वीडियो 1 मिनट की वीडियो देखना बंद करो और 4 घंटे की पूरी तहकीक किया करो। कुरान में हुक्म है इस बात का। द आइडिया टू टेक आउट ऑफ इट इज कि इस्लाम हमें सिखाता है कि देयर शुड नॉट बी एनी मैं, कि हमें नहीं मालूम, कि हमसे बेहतर जो है देयर माइट बी समबडी एल्स नोइंग। सूरह हुजरात के अंदर भी अल्लाह ने बेसिकली कोट एंड कोट एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता, साहिल भाई शायद बेहतर बता सकते, बट उसमें भी यही है कि देयर माइट बी अदर्स हु माइट नो मोर देन यू। डो नॉट लोगों का तफन्नुन या मजाक ना उड़ाए, मफहूम की मैं बात कर रहा हूँ जाके सूरह हुजरात में भी है। तो मेरा पॉइंट कोर क्रक्स ये था कि इस्लाम बात में ये ऐसे नहीं है कि लोगों को ज़्यादा पता होगा इसलिए ला यसखर मत तस्हीक करो लोगों की, इसलिए नहीं है। बहरहाल आपने जो ग्रैंड मफरूज़ा असम्पशन रखी हुई है कि मैं अपनी मैं पे आया हुआ हूँ, मैंने तो एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मेरे पास कुल इल्म है। ये बात थी इतनी सी, इसका जवाब बनता था कि मेरे पास मेरे अंदर मैं है या नहीं, ये बनती थी। लेकिन इससे हट के वापस उसी कॉन्वर्सेशन के अंदर अगर आए तो बात तो मेरी वो इस्टेब्लिश हुई कि देयर इज़ टू मच ऑफ yourself and very little less of the others, and that are the poor and the common in the society, sadly. That is so untrue. I don't even know where to begin dismantling this. मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि ख़ास लोग प्रॉस्पर करने चाहिए, आम आवाम की खैर है। किसी बातें कर रहे हैं। Why would you assume that? That is a general assumption because आपको पता ही नहीं लोगों के मसाइल क्या हैं। तो सूरह हुजरात ही में है ना, असुम ना किया करो, सूरह हुजरात की आयत है। पॉइंट इस कि आपको मैंने इतनी चीज़ें बोली हैं, मुझे कहीं एक पे कुछ किसी का तो जवाब देते, आपने किसी का भी जवाब नहीं दिया। और बेसिक इंडिकेटर्स हैं, वेरी मतलब बहुत बेसिक इंडिकेटर्स हैं। मैंने आपसे अभी कहा है कि हुकूमत की पॉलिसी जंजुआ साहब की छत का लीक बंद करती होती है या फिर ज़्यादा बढ़ा देती होती है। उनको इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता, इसलिए नाअहल लोग जब ख़ास जगहों पे आ जाएं तो आम आवाम की छतें टपकना शुरू कर देती हैं। इट इज़ दैट सिंपल। मैंने आपको मिसालें देने की कोशिश की, अब बीच में काट देते हैं, मगर जो मिसालें मैंने दी हैं आई होप सब तक पहुंच चुके हों कि हाँ। Still didn't. You didn't understand it, I know, don't worry. I know you didn't understand it, it's okay. You lack empathy is all that I'm trying to say. Or maybe you lack IQ. No, इसमें मेरी मैं तो नहीं थी। I think that was a good answer that you gave, but it's okay. Yeah, just because you don't understand it doesn't mean I don't have the answer or it's not correct. Or maybe I am the one who is understanding and has the platform to ask you these questions, and the innocent in the society who are being fooled at the hands of your wording and your attire and journey, तो शायद पता ना चल रहा हूँ। I mean, मैं बताता हूँ इसको, ये हो गया बेसलाइन अगर हमने बिल्ड कर लिया, तो मैं कहता हूँ कि अगर हमने एम्पावरमेंट की बात करनी है बिल्कुल करें, लेकिन उसके अंदर अपनी जहाद की बात करनी है बिल्कुल करें, इस्लाम की और हक़ की जीत की बात करनी है बिल्कुल करें। ये सारी चीज़ें वो हैं, रियलिटी हैं और ऐसा ही होना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इनोसेंट सिविलियंस, नॉट Just trying to burn them on the cross. मैंने कब कहा है कि it should come at the cost of, ये क्यों आप assume करी जा रहे हैं बाबा? because that is how it is. No? No.
ये क्यों, ये आपने खुद ही एक लोगों के मसले मैंने कभी सुने नहीं, कभी लोगों के मसाइल की बात की है आपने? और किस मिसाइल की बात कर रहा हूँ मैं? परिंदों के मिसाइल की बात कर रहा नॉट हूँ। द प्रिविलेज्ड, नॉट द मैंने प्रिविलेज्ड। कब प्रिविलेज का लफ्ज़ कभी यूज़ किया? नहीं। What do you think I'm an elitist? That is the whole argument that I'm presenting over here. Why would you assume that? No? Yeah, it's going to take an hour long for me to build from 0 to 100 के असल में, you know, आम बंदा कैसे जो है ना वो अपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स ठीक कर सकता है विदाउट इवन हिम नोइंग द साइंस बिहाइंड इट, बिकॉज ख़ास बंदे इस तरीके से अपने आप को दुनिया में प्लेस करते हैं, गवर्नमेंट्स को, प्लेटफॉर्म्स को, रिसोर्सेज को। आपको पता है ना कि शहबाज शरीफ के एक कदम से 25 करोड़ के इधर 10 कदम आगे चलते हैं या 10 कदम पीछे हो जाते हैं। पावर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, दिस रिपरकशन। मतलब एक गलत मूव शहबाज शरीफ की आम आवाम की 100 गलत मूव्स के बाद भी भारी है ना। अभी देखिए, मुझे अच्छा लगा कि आपको ने 2-4 पॉलिटिशियंस के नाम पता है, कि आपको द बेसिक्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स भी आप टच करने की कोशिश करते हैं। माई प्रॉब्लम इज़ कि एज अ लीडर ऑफ माई सोसाइटी आपको बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ हाउ द पीपल आर, देयर कंडीशन, आपको वो तो पता हो। दैट्स माई होल आइडियोलॉजी दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड। सो यू सी, एग्जाम्पल इज़ कि अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी का इशूज़ हैं कि एक्चुअल कोर प्रॉब्लम क्या है, तो आपने उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो किस तरह से फिगर आउट करना है। क्या इशू है? सबसे बड़ा इशू क्या पाकिस्तान का, ये बताएं। I know again you're gonna take me over there. I'm not taking- गुर्बत के अलावा गुर्बत को आपने डिस्कस कर लिया। यू थिंक गुर्बत सर, मैं कोर डेवलपमेंट की इशूज़ की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप उनकी बात नहीं करते। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बेसिक राइट्स की बात नहीं करते। मैं कह रहा हूँ आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की आप शायद बात नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का या बेसिक ह्यूमन राइट्स का, तो बार बार ये आपको ये भी नहीं पता वो भी नहीं पता वाले जुमले बार बार रिपीट करके किसी को बता दें, मैं सुन लेता हूँ, बताएं। पूछें क्या बताऊं, किस कैटेगरी में? पहला सवाल, 8-9 कैटेगरी में आपने खुद ही कहा मुझे ये भी नहीं पता वो भी नहीं पता। आप ये समझ रहे हैं 25 करोड़ आवाम गरीब है। एग्जाम्पल क्यों दूं? क्योंकि अगर आपको पता होता ना तो आप, मैं वहीं पर जोड़ता हूँ जाके, थोड़ी क्लीशेड बात है, पर अगर आपको बेसिक्स पता हो ना तो आप औरतों को 95% औरतों को जाहिल ना कहें। अगर आपको यहाँ के डायनामिक्स पता हो, आप ना कहें, आप कभी भी ना कहें। अब यहाँ पे जुमला आगे मत बोलना, क्योंकि सुन लो, 95% औरतें दीन से नाबलद हैं और अपने आप को सही समझ रही हैं। ये विमेन राइट्स के प्रोग्राम के अंदर एक जुमला है। पूरा प्रोग्राम मैं दावे से कह रहा हूँ, आपने पूरा प्रोग्राम भी नहीं देखा हुआ। आपको पता है, और या फिर काट दी ना बात। नहीं, आपको जब सर्च करते हैं 95% क्या आती है? ये फर्स्ट थिंग दैट यू व्हेन समबडी सर्चेस साहिल अदीम, आपकी जर्नी की मैं बता रहा हूँ, आपकी माशाल्लाह लंबी जर्नी, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आगे दहाइयों की जर्नी और है। द फर्स्ट थिंग व्हेन समबडी गूगल्स यू, पता क्या आता है? कि आपने 95% औरतों को जाहिल बोला हुआ, दैट्स इट। तो अभी कितने लोगों के पास इतना टाइम है या कितनों के पास इतना मौका है या आपके पास ये कितनी अपॉर्चुनिटी है कि आपके बैठ के एक्सप्लेन करें? कि 5% के पास इतना 5% इतना टाइम निकालते हैं कि वो पूरी जर्नी देखे, पूरी वीडियो देखा, पूरा किताब पढ़ें, तब जाके किसी एक सफ़े के ऊपर जुमला ना करना। 5%। और बात सुने, कॉमन सेंस का बात बता रहा हूँ, जिसने किताब ही नहीं पढ़ी और वो एक सफ़ा पढ़ के उसके ऊपर कमेंट करते वो जाहिल नहीं है? टेल मी यस और नो। मुझे एक बात रिलीजन की बात नहीं हुई। आप एक किताब का एक सफ़ा पढ़ के डिसीजन दे देंगे किताब में ये है, ये गलत है, ये सही है। वी थिंक दिस इज नॉट जहलाना एक्ट। ये असम्पशन है। ये मैंने तो पूछा ही नहीं है कि आप कर रहे हैं कोई और कर रहा है। मैंने कहा अगर ये वाकया हो, जो भी ये वाकया करेगा वो गलत करेगा, जहलाना हरकत करेगा। कहीं और ना लेके जाएं। मैंने आपसे कहा है कि किताब का सिर्फ एक सफा पढ़ के कंक्लूजन ड्रॉ कर देना क्या जहलाना एक्ट है कि नहीं, और उस पर तन जाना के भाई मैं तो भाई यही है इसमें बस। ये जाहिलाना अमल भी नहीं है। मतलब कि एक सफ़ा पढ़ा है किसी ने, एग्जाम्पल है, एक बच्चा है उसके पास एक रात थी, उसने बाकी साल नहीं पढ़ा, वो रात के अंदर 2 घंटे लगा के अगले दिन पेपर देने बैठ गया, तो मैं उसको जाहिल कहूँ? मैंने आपसे को जो सवाल पूछा उसी पर रो, एक किताब आपको देता हूँ, उस किताब का सफ़ा नंबर 271 पढ़ा आपने और आपने कहा बस ये राइटर भी ऐसा इस किताब में यही कंक्लूजन है। बस कब हुआ है? मैंने आपको पहले सवाल पूछा, उसका जवाब देते हैं। मैंने क्या और उसके ऊपर मैं अड़ जाऊं कि राइटर ने गलत बोला हुआ है, मुझे पता है, मैंने उसे किताब का एक सफ़ा पढ़ लिया। दिस इज व्हाट द राइटर इज, दिस इज व्हाट द बुक इज। ये जहलाना एक्ट है कि नहीं है? भाई किसने किया ऐसा? सिंपल क्वेश्चन, किसने किया ऐसा? आई एम नॉट सेइंग किसी ने किया, आई एम सेइंग अगर ये गुड विद वर्ड्स ना, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। नो, इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट अ कांसेप्ट। ये बताएं। इट्स नॉट अ कांसेप्ट, इट इज अ कांसेप्ट जो मैंने अभी आपके सामने समबडी जाहिल। मैंने आपसे पूछा है, मैंने जाहिल कहा है कि नहीं है? अभी नहीं कहा। ये बताएं
अगर एक बंदा अड़ जाए कि मैं राइटर गलत है, मैंने पेज नंबर 271 पढ़ लिया है, दिस इज ऑल हिज बुक एंड दिस व्हाट ही मींस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस काइंड ऑफ दिस इज द काइंड ऑफ मैन ही इज, क्या ये क्लेम उसका और इस बात पे अड़ जाना चाहिए? क्लेम है, गलत क्लेम नहीं है। क्या ये हरकत जाहिलाना है कि नहीं? नहीं, जाहिलाना आपके लफ्ज है, मैं किसी को जाहिल नहीं कह रहा। मैंने आपसे पूछा है क्या ये हरकत, मैंने कोई बंदे का नाम नहीं लिया, नाकबंदी का, क्या ये हरकत जाहिलाना है कि नहीं? अगेन जाहिलाना हरकत नहीं है। नहीं, देन वी हैव अ प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट, बस ठीक है, बस बात ही खत्म हो गई। मैं बताता हूँ इस प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट के अंदर मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अबू जहल का जो लफ्ज़ था जी, वो क्यों आया था वैसे? फॉर माई अंडरस्टैंडिंग आई वांट टू आस्क, क्योंकि वो अपनी गलत बिलीफ पे अड़ गया था। अपनी गलत बिलीफ पे कब अड़ गया था? व्हेन ही हैड द रिक्विजिट नॉलेज, He already had the knowledge of his own forefathers' belief system. He was an arguer. He is not just a guy who's आम आवाम नहीं था वो। आम आवाम नहीं था, एग्जैक्टली एक आम आवाम नहीं था, उसके बावजूद अड़ना जो है किसी गलती के ऊपर, वो जहल तो समझ में आता है। Yeah. इस्लाम कहता है। तो ये जो 95% को का, डू यू थिंक दे हैव द रिक्विजिट नॉलेज? आई डोंट थिंक सो। डू दे हैव द रिक्विजिट नॉलेज कि आपने उनको, तो बेचारियों को पता ही नहीं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। आपको मैं अगेन मैं फिर फिगर्स पे आऊँ, मैं आपसे यहाँ पे स्टार्ट्स निकाल के आपके साथ बैठ जाऊँ, आपको बेसिक प्रॉब्लम भी नहीं पता होंगे उनके खवातीन के मसले। आप ऐसा करें, सुने, आप बात वहीं पे रखिएगा, क्योंकि मैं तो इस बारे में डिस्कस नहीं करता। 10 साल पुरानी बात हो गई है, महावरतन कह रहा हूँ, 2 साल ऐसा में। लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान का? 60% होगा। औरतों का कितना है? आपसे पूछना चाहिए वैसे, मुझे पता है कितना है। औरतों की बात है, मैं आपसे पूछूंगा, मैंने फिगर्स मैंने कहा मैं पूछूंगा। आदमियों को 28 है, औरतों को 23 है। आदमियों को कितना है? 28 लिटरेसी, ठीक है। अच्छा, फिगर्स थोड़े से गलत है आपके, लेकिन कोई लोकल लोग, ठीक है। आप कह रहे हैं औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं? नहीं, औरतें कम है ना। मैं तो कह रहा हूँ इस बारे में तो मानते हैं ना कि औरतें कम पढ़ी लिखी, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा औरतें 80 कुछ % के करीब क्या बाई चॉइस कम पड़ी हुई है? और कहीं और ना जाओ बात को लेकर। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, ये लग रहा है आपकी बात से कि जिस तरह कम पड़ी हुई है जैसे जान की नहीं पड़ती। बात सुने, मैंने आपको कहा है आपको जाहिल टर्मिनोलॉजी में मसला है। और से सुने, इलिटरेसी के ऊपर इलिटरेट को इलिटरेट ही कहेंगे ना, क्योंकि हम लिटरेसी की बात करें। सो जब एक बंदा इलिटरेट हो ना, और उसके बाद वो कहे जो चीज़ मुझे पता है वो सही, हालांकि उसको पता ही ना हो कि वो क्या है, वो गलत कह रहा है, उसको कौन कह रहा है? ये कहाँ पे, ये फिर किसने सर्वे किया था? 95% खवातीन, ये सैम्पल साइज था, ये फलां यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने की। कौन, कहाँ पे हुआ था ये? मैंने कम से कम 30 दफ़ा बता दिया है कि कहाँ पे हुआ था। मैं वो खाली ये बता रहा हूँ। कोई तो प्रॉब्लम होगा कि अभी तक जस्टिफिकेशन नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। मैं जो सवाल, हालांकि मेरी टॉपिक भी नहीं है, कॉन्वर्सेशन का नहीं है, लेकिन वो आपकी बातों के अंदर आया तो मैंने उठा लिया पॉइंट। I'm trying to decide whether this is too boring or it's too irrelevant. It's old news. I've already made my case. Not too boring, not too irrelevant. Maybe you don't have the answers. मैं बताता हूँ। Maybe too difficult, uncomfortable. कान खोलें, मुंह बंद रखें, एक सेकंड। कुल अफ़ग़ैर अल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। अल्लाह ने जाहिल किसको कहा यहाँ पे? भी पता नहीं, आप बता दें मुझे। तो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखने के मोड में तो नहीं बैठे हो कहीं पर, सीखने के मोड में ऐसे बातें करते हो? सिखाएं तो। सीखने का मोड ये होता है, बताएं तो। कुल अफ़ग़ैर अल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु, इसका मतलब है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे जब कहते हैं कि हमारे सिस्टम के ताबे आ जाएं, ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक है, हम जिस चीज़ की पैरवी करते हैं आप भी उसी की पैरवी करें, ठीक है। तामुरूनी का मतलब है कि तुम मुझे बताओगे कि क्या मतलब, यूर ऑर्डरिंग मी, अमर का सीगा इधर, यूर एक्चुअली इंसल्टिंग अपॉन मी। कुल अफ़ग़ैर अल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु, कि मैं तुम्हारे उन मबूदों की पीछे लग जाऊँ जिसमें तुम लगे हुए हो। मैं तो इन्हें कहें अय्युहल जाहिलून, तुम लोग जाहिल हो। अब ये बताएं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में इन लोगों को जाहिल कहें कि जो गलत चीज़ के ऊपर अड़ जाएं, और सही लोगों को कह रहे हो हमारा सिस्टम ठीक है, तुम्हारी बातें गलत हैं, चाहे मैं कुरान सुना रहा हूँ। मैंने जाहिल नहीं कहा, इसलिए आप ची चू चा नहीं कर सकते इस बात पे। बताएं, अल्लाह ने जाहिल कहा है, अल्लाह ने जाहिल कहा है इस बात पे, आप बताएं किस दौर के अंदर ये हुई, किस कुरान हर दौर के लिए भाई बिल्कुल सही है। मैं पूछ रहा हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में थी, के लिए मैंने आपको पूरा समझाया कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट मैंने भी बताया वो कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्टेक्स्ट इससे फिट नहीं होता। यूजिंग दैट टू कॉल
95% वुमेन जाहिल डज नॉट मेक मैंने आपको सेंस। मैं जवाब उसके अंदर इसलिए नहीं जा रहा, अगेन एक रिलीजियस डिस्कोर्स खुल जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके अंदर मैंने इसलिए कहा था कि 1 मिनट ना देखते वीडियो देख लेते। मैंने दीन ही की बात की थी कि भाई दीन इज अ सिस्टम, उस सिस्टम में आओ, अल्लाह के कानून के अल्लाह के कानून में औरतें जाहिल हैं 95%। आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह का ये कौन सा इस्लाम है? मुझे फिर इस्लाम का नहीं पता। फिर मतलब कि मेरा पॉइंट ये अच्छा आप ये कह रहे हैं कि नहीं सर आधी से ज्यादा औरतों को कुरान का फहम है? मैं ये बात नहीं दूसरा यही आंसर है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप बता दें कितनी औरतों को कुरान, कितने आदमियों को, कितने आदमियों को? चलिए मैं आपको MDI पता, ह्यूमन डेवलपमेंट HDI का आपको पता था? आपके ख्याल से मैं बताता हूँ मेरा कोर इशू क्या। मैं अपना अपना इशू बिल्ड करने की कोशिश करने आए हुए नहीं मैं आया हूँ, तुम्हें बोलने का मौका देना। मैं पॉइंट क्या एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। सो व्हेन यू टर्म समबडी एक सोशली डिप्राइव्ड सेक्टर, सोशली डिप्राइव्ड जो आपकी जेंडर ऑफ द सोसाइटी है, दैट इज जो खवातीन है आपकी। भाई सोशली डिप्राइव्ड इज द रॉन्ग प्रेमिस। मैं कुरान डिप्राइव की बात कर रहा हूँ। कुरान पढ़ने में पैसे लगते हैं? गॉड सर मेरी बात, पैसे लगते हैं कुरान पढ़ने में? बात तो पूरी होने दें। मैं कह रहा हूँ कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है आपकी सोसाइटी के अंदर, जब आप उसको जाहिल कहते हैं और इतना बड़ा स्टैचर होने के बाद, तो उसका नुकसान ये होता है कि उनके ऊपर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज जो अनपढ़ गवार मर्द बैठे होते हैं उनको कहते हैं कि साहिल अदीम ने कहा था औरतें तो होंदियां जाहल ने, इन्हों कुटो, इन्हों घर बाओ, ये को बच्चे कढ़ाओ, फिर वो ये वाला मामला हो जाता है। समझे? आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी कि आपने तालीम दी। अब क्या फ़ायदा आपकी इस बात का कि जिन औरतें आपको सुनना ही नहीं चाहती साहिल भाई, तो इशू तो आ गया ना। आपने जिनको कुरान सिखाना था उनको आपने जाहिल कहा, उन्होंने कहा ऐसे सुनते ही नहीं आता, बंदा ही मिसोजिनिस्ट है यार। तुम द पॉइंट। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास वर्क, मैं आपको ना उनके स्टार्ट शेयर करता हूँ। एजुकेशन की अगर हम बात करें, फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें, उनकी वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, फाइनेंशियल गैप, वेज गैप की आप उनसे बात कर लें, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात कर लें, रेप केसेस की बात कर लें, अर्ली मैरिजेस की कर लें, अबॉर्शंस की बात कर लें, एसिड अटैक्स की बात कर लें। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रॉन्ग विद द वुमन इन द कंट्री एंड यू वांट टू सिट इन योर फैंसी चेयर एंड से कि ये तो जाहिल हैं। सर उनके साथ ज्यादती हो रही है। डोंट कॉल देम जाहिल, हैव सम एम्पैथी प्लीज। नो डूड यू सो ऑफ। सुने, आपने मेरा काम देखा ही नहीं हुआ, इसका मतलब है। सो आई कैन इवन टॉक टू यू अबाउट दिस। सैलरी सर्च करें ना साहिल अदीम तो लिखा आ जाता है कि कॉल्स 95% पीपल वुमेन इन द सोसाइटी जाहिल ऑन दैट शिट। मैं कह रहा हूँ पहली चीज़ ये आती है, गूगल कर लें, अभी आप लोग भी कर रहे हैं। दूसरी तीसरी आती है तो लंबी जर्नी आपकी माशाल्लाह, आपकी कंट्रीब्यूशंस कोई नहीं दूर लेके जा सकता आपसे। ये बताएं, ह्यूज फैन जस्ट बाय द वे। साल हो गए आपने वीडियो नहीं देखी पूरी, मुझे तो इस बात पे। साहिल भाई आपको इसका मतलब है मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप अड़े हुए हैं उधर बात पे। आपको मैं कह रहा हूँ जो मेजर चंक ऑफ द सोसाइटी जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनकी आपने आवाज़ बनना है, वो उनको आपने भगा दिया है। मैं कह रहा हूँ आपकी बात ठीक है, उनके पास कुरान की मेरी आवाज़ हर जगह औरतों तक पहुँच रही है। औरतें आर बीइंग empowered through my concepts by telling them that they are jahil by the millions। मैंने आपसे कहा ना, आपने एक टाइटल पढ़ लिया अपने गूगल के सर्च के ऊपर और आपने उसके बाद फैसला किया ना, इसलिए ये जाहिलत होती है। बाय द वे ये जालत है, आपको पता ना कि जो आपने हरकत की है ना, सर्च किया, ये लिखा हुआ है था, मान लिया जालत है। ख्याल है कि मैं आपके साथ बैठा हूं, कोई जनानी तो नहीं है ना, इसलिए कोई जनानी तो नहीं ऑफेंड होगी। आप एक जाहिल आदमी है, आपको पता है। ओह माय गॉड, डिड यू सी व्हाट ही जस्ट डिड? आपने जो हरकत की, स्पीचलेस। लिसन, आप ये बताए दुनिया में कोई बंदा जाहिल है? ये बताएं इस्माइल। I don't even want to continue this conversation. I am oh, now you know where I was at for the first 10 minutes. I mean, seriously. Listen, how does it feel when I mean, look me in the eye and repeat what you just said. that जो भी आपने स्ट्रक्चर मॉडल बताया है, दुनिया का सबसे जाहिलाना मॉडल है। अगर आप इस मॉडल पे लोगों को जज करते हैं तो आप एक अजली जाहिल हैं, आप एब्सोल्यूट जहालत का पैकर हैं। जो सर्च करो ये बंदा कौन है, अच्छा नंबर 1 लिखा हुआ है, इसने 95% औरतों को जाहिल कहा, इसका मतलब है साहिल अदीम जो है ना, ये मिसोजिनिस्ट है। दिस इज द कॉर्पस ऑफ ऑल ऑफ योर वर्क इज यू एक्चुअली। आप शुक्र है लड़की नहीं है, नहीं तो मैंने और मिसोजिनिस्ट सुना। देखें एक आदमी को मैंने खुलेआम मुंह पे जाहिल कहा, तमाम औरतों को। अचानक मैं फेमिनिस्ट हो गया हूँ इस बात पे। हाँ, ये भी सर्च इंजन में आएगा किसी के, उसने सर्च इंडेक्स में देखना है आदमी को जाहिल कहा, वो भी खुलेआम मुंह पे, तो अब औरतों को इस बात पे इल्म मिल जाएगा? नहीं, इल्म तो फिर भी किताबों से ही मिलेगा ना। जिस आपने सर्च, I feel so sad. You should no. You should feel guilty, not sad. See, ये बात है. You feel sad. You're justifying your lack of ability You of talk research. about IQ all the time and मेरी सारी गुफ्तगू का क्रक्स आपने ये निकाला।
सारी गुफ्तगू तो आपने That's गुफ्तगू का तो कैटेगरी में आप That's एंटर low. नहीं हुए. गुफ्तगू की कैटेगरी ऐसे नहीं होती. That's low even by your own standards. Listen, whatever you have to say to me and whatever you've said to me does not constitute conversation. Okay? This is not conversation. And I'm not that guy who's going to be politically correct for the sake of trying to please people. I'm the guy who's going to call. If it walks like a duck, acts like a duck, feels like a duck, most probably it's a duck. Okay? That's the kind of guy I am. I am going to call you whatever you're going to do upon whenever you're going to do it. Not even a nanosecond of delay. Just be human, please. That's all I ask. Don't, I mean, doesn't look nice. एक आंख से आंसू निकलो ये बात करते हुए. एक्सपीरियंस पूरा होगा ना देखने वालों का. और यू ट्राइंग टू विन अ वोट और समथिंग. ये गलत प्रेसिडेंस में ठीक करना चाह रहा हूँ लड़के लड़की की. ये क्या कर रहे हो? ये क्या व्हाट काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन डू यू? सर जस्ट एक्ट ह्यूमन प्लीज. सूरज मस्जिद से निकलता है. वी नो दैट. ऐसा क्या ताल्लुक है इस बात से? अर्थ 24 घंटे में अपना एक्सेस पूरा करती है ना? यूनिवर्सल ट्रूथ कोट कर रहे हो मेरे सामने. Having empathy Having empathy is a good does thing. not mean that you are weak. That these are two Yes, having separate empathy things. does not mean you're weak. Islam Sun can- rises from the east. What does that got to do with what I'm saying? So you preach Islam, you talk about Islam. Islam ने जहाँ पे गर्दनें उतारी हैं, इस्लाम ने वहाँ पे बहुत एम्पथी भी शो किया. वहाँ पे फतह मक्का, सुलह हुदैबिया वाक़यात वो वाले भी हैं सर. बस मेरा एक काम कर लेना भैया. सच बताओ, ये पॉडकास्ट ना रिलीज करने से पहले एक बार देख लेना. ठीक है? और किसी को दिखा देना. वरना मैंने नहीं कहा कि एम्पैथी क्या है, इस्लाम ने गर्दनें उतारी हैं, औरतें जाहिल. आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दिस. जस्ट टेक अ फीडबैक 10 people, maybe a little more. Okay, पाकिस्तान के जो हालात हैं, at least You know what? पंद्रह एक बंदे. I'll let it go out. I'll let it go out as it is. I'll let it go out as it is. I'm जहाँ showing पे- empathy now and just saying, oh, मैं मैं empathy दिखा बताता रहा हूँ, हूँ. मैं बताता हूँ. नहीं, you are being I'm trying to protect you here. You are man. again going back into your bubble where you think, oh my God, I'm the king of everything. I am the champion of morality. No, I am मैंने I लोगों को am a सुधारना है. proponent of empathy right now. I'm not a king of Going empathy. back into your bubble. I'll come out and just I'll write up. I'll let it go out. For now, I believe that if you have to lead the society, you'll need to have some empathy and basic indicators तो पकड़े यार लोगों के इस्माइल। मामलात को. मैं जा रहा हूँ. होश में आओ और सुनो. You are trying to exert this podcast should be in a box somewhere. Trust me, do not release this podcast. Perfect. Thank you so much. अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. इस्माइल कासिम को इजाजत दीजिए. Until next time, अल्लाह हाफिज़.